there is a change in the total way of the medical field. Not only there is reduction in the earning, but the way of earning is increased. First thing. And these questions will be asked in your viva also. कि there are some grey zones we should not enter. And everyone will say that you have wasted a seat. Don't argue during interview. Don't at all argue with that. Okay. Second, the family pressure is very high. They always see you as an intelligent guy. And those who want to get in postgraduate, and they feel if you become a cardiologist, if you become a medicine, you will do at par and you will get married and you will have kids and everything will be settled. This is not the case. भाई आज भी हमने एमडी मेडिसिन बॉम्बे केम से तुझे दिया तो एक घंटा पैसा नहीं मिलने वाला. They have to be very clear. We have seen a Pune with 386 cardiologist DM working at present. तो वो तो भूल ही जाओ. So wasting so much of time, you always think कि why I am there. So for you have to be very clear. Why this is the way and I am at the right path. The only thing कि मेरे पीछे भीड़ आने वाली है. I am the first. So I have to make the road. From last 5 years I am talking with many doctors. First I have to tell them why you should do. They will say no, everything is okay. Second they will say no, the social bindings are different and we don't want a civil service like. Then they said that okay, why you don't want to have a civil service like? No, I want to have some relaxed life. Are your life is relaxed? No, I don't want phone calls. Anyway, you are getting phone calls from the patient. No, I don't want corruption, to be very frank. भाई तू एक्सरे भी बना रही है, अननेसेसरी एमआरआई भी बना रही है, तू सीटी स्कैन भी बना रहे, अननेसेसरी मेडिकेशन भी ले रही है, कॉर्पोरेट में तू बोलेगी वो तुमको काम करना पड़ता है, then you are at screwed. This is not a corruption. At least you will be an officer in charge who can have a both behaviors. So corruption is altogether now, according to ethics, the definition is totally different, you know, and it's the wrong use of the position. It starts from anything. But we will not discuss that. Now, what pertaining to interview about this MBBS journey? Ki they will ask you one very simple question: why you have selected? You should know that I have not wasted MBBS. I have not wasted at all a MBBS degree. तो बोलेंगे how? अरे भाई, there may be a COVID. And all people are non-doctor and they are asking us to do this, do that. This is all nonsense. What we But don't answer like this UPSC में. उनका ही आंसर उनके लीलापे में डाल देना. Sir, they will ask you, tell me how your medical college knowledge will help you in my administration. That is the question. भाई हमको मालूम है उसका आंसर कैसा देना है. Same answer. Sir, we are born and brought up with the patient. And we developed some good qualities like patience listening. हमारा इतना patience listening कोई नहीं कर सकता. कुछ भी बकवास करो, we have to listen to the patient. Picking up of the good important points which are relevant for diagnosis. Now you have to compare with the another portion. Which administrative portion? You have to listen. See, these are the qualities of the good civil servant. So patients find out the relevant points, analyze them, write in a proper way, with a good chronological order. Right? Good chronological order in their importance of their value. भाई ऐसा ही कुछ नहीं है, कहाँ से आ रही है, कितने दिन से आ रही है, वेट कम हुआ क्या नहीं, टेम्परेचर नहीं, मैं गांव को गया था, सीढ़ी चढ़ रही थी, फिर भी वी आर लिसनिंग. सो वी आर गुड साइलेंट लिसनर, वी आर सिंपैथेटिक एज वेल एज एम्पैथेटिक. उसका सवाल ही नहीं है, हमसे ज्यादा कोई लिसन ही नहीं कर सकता किसका.
So civil surgeon first quality he should be active listener. Second thing, सब कचरे में से गुड पॉइंट्स निकालना, वो तो हमारी आदत ही हो गई है। बंदा कोई आके नहीं बताता 3 डेज से फीवर है, 2 डेज से चिल्स है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना है, ऐसा कुछ नहीं बताते। We have get a pile of information and we sort it. Second thing, we are analyzing the facts and we are coming to a particular diagnosis, finding out what is the fault. यही एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। उसके बाद क्या करते हैं? We apply minimum resources with maximum output. वो तो हमारे आरएनए में, डीएनए में लिख के दिया है, आरबीसी पे ही है, कम रिसोर्सेस में ज्यादा काम करना। रिसोर्सेस ही नहीं है, कहाँ एक्सरे रहेगा तो उधर सीटी नहीं है, किधर एमआरआई नहीं है, फिर भी हम काम तो चलाते हैं। उसके बाद वी डू सेल्फ एनालिसिस, पेशेंट ही देख रहे हैं ना, उसके बाद हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं एंड वी आर फाइंडिंग आउट वेयर द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। उसको क्या बोलता है? ऑडिटिंग, सेल्फ ऑडिटिंग। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सिविल सर्वेंट, राइट? इंट्रोस्पेक्शन, दिस इज आल्सो क्वालिटी ऑफ सिविल सर्वेंट। दैट नॉट ओनली दैट, वी कोरिलेट विद द सोशल। प्रेग्नेंट फीमेल है, खाना खा के आ रही है, ठीक है, ओजेसिटी करो 2 घंटे की, मालूम है ओजेसिटी का परसेंटेज कम है, बट वी हैव टू। हमारे इंडिया में कोई पर्सन प्रेग्नेंट फीमेल को खाली पेट नहीं सुला या बुलाता भी। अभी डूइंग ओजेसिटी इज 2 आवर ओजेसिटी, वी टेक गिव 100 ग्राम एंड उसको 2 घंटे के बाद बोलते हैं डू अ ब्लड शुगर लेवल इफ इट इज अबव 140, एवरीवन नोज दैट। बट दिस पेशेंट ideally should be NBM, ideally should have fasting, ideally should have everything is there, but we omit. This is a very nice example with articulation of a social in a medical field. अभी एक बंदे को फिजिक्स में, he was a BSc and MSc master of physics, he was asked how will you correlate Newton's law with our administration. He said that first law, take a first law, if you are in continuous phase of a motion without any disturbances, so civil servants are like it is in the same motion unless someone pokes in. So that was a good correlation. Same correlation can be given. We have social values, we have social values, social beliefs, तो उस हिसाब से भी हम चलते हैं। हाँ, उसके बाद हम उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी लिखते हैं, उनका वर्क बैलेंस भी पूछते हैं। तो इतना क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। दूसरे डिग्री में इतना क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कन कन में एडमिनिस्ट्रेशन है सर। वी आर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर विथ लीस्ट रिसोर्सेज, पर इतना एक्सट्रीम मत बोल। पर हमको खुद को मालूम होना चाहिए, हमको क्या लगता है। वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट फॉर दैट मेडिकल फील्ड। हम पेशेंट चेक करना ही हमारा सवाल है, हमारे प्रॉब्लम है ही। गायनोकोलॉजिस्ट बोलेगा ये मेरा नहीं, ये पीडियाट्रिशियन का काम है। अभी एमबीबीएस होने के बाद जेआर होके ज्वाइन होते हैं, 1 घंटे 1 दिन में वो गायनोकोलॉजिस्ट बन जाते हैं और बोलते हैं ये पीडियाट्रिक का काम है, उसको दे दो। सो दिस इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर। अभी आप भी यूपीएससी में रहेंगे तो आपको लगेगा नहीं आई शुड सी अ पेशेंट। नो, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच टू बी करेक्ट। सो फर्स्ट थिंग वेरी क्लियर कि व्हेनेवर यू से व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस बीइंग अ सिविल सर्वेंट, तो ये तो बात, आर यू कन्विंस्ड? यस सर। मोर देन कन्विंस्ड? यस सर। हाँ, कोई आईआईटी नहीं बोलता करते से एनालिटिकल स्किल, हमसे ज्यादा किधर है किसके पास एनालिटिकल स्किल? सोशल कोरिलेशन नहीं है इंजीनियरिंग में, इकोनॉमिकल बैकअप, साइकोलॉजिकल एंड ये काउंसलिंग, ये भी नहीं। तू बोल वो सब है यार उसमें, पर हमने ही देखा नहीं है। फुल ऑफ निगेटिविटी। हमारा पॉजिटिव आउटलुक कैसा है? हमारे पास सब पेशेंट आके निगेटिविटी आते हैं, हम इतने पॉजिटिव है कि सबकी निगेटिव एब्सॉर्ब करके भी पॉजिटिव होते हैं। भाई, दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी। सेकेंड थिंग, वी आर ऑलवेज इन द मूड ऑफ एक्सेप्टिंग न्यू। ये भी लिखो।
क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट, नाउ दीज पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग एआई। बट हम तो शुरू से ही सबको एक्सेप्ट होते हैं। जब सोनोग्राफी नहीं थी तभी हमने एक्सेप्ट किया, सोनोग्राफी आई तभी एक्सेप्ट किया, कलर डॉपलर आया तभी एक्सेप्ट किया, अभी एआई आ रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है नो, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड दैट आवर प्राइम इंपॉर्टेंस इज पेशेंट, is the upliftment of the patient. These are the qualities which are instilled in us. हम खुद को भूल जाते हैं। We don't have the identity. Doctors are doctors. We don't have self identity. These are the idealistic quality of a civil servant. नहीं तो over a period you see, because of this thing everyone get ego because of its position, but you will never see an ego in the doctor. Doctor is always a patient listener. So these are taught like this only. So we follow all this. So this is the one thing why you have become a doctor and doctor can. अभी second बात जो है, what I am telling you, very important. You are scared that something will ask about MBBS. कब है इंटरव्यू आपका? 25 हाँ, और आपका 21 मार्च। 21 कब है इंटरव्यू? उस टाइम में आपको ऐसा लगता है यार ये एमबीबीएस के बारे में कुछ पूछा तो घंटा समझ में आ जाएगा। पहले से इंटरव्यू दे दे के एमबीबीएस में मेडिसिन में परेशान हुए थे, पुलिस उठा रहा है समझ में नहीं रहा, इंट्राकैथ का नंबर समझ में नहीं आ रहा, ईटी का नंबर, अभी ये पूछेगा क्या यार? एमबीबीएस तो इट्स सच ए एक्सटेंसिव सब्जेक्ट, राइट और रॉन्ग? और ये बोलते हैं बेसिक तुम्हारा अच्छा करके आ जाओ, ग्रेजुएशन में क्वेश्चंस पूछेंगे। सी नाउ दिस इज द वन थिंग व्हिच इज वेरी क्लियर, उनको कुछ भी नहीं मालूम है मेडिकल फील्ड इज सच एक्सटेंसिव। 10 यूपीएससी सीएससी लगाएगा फिर भी एमबीबीएस का पढ़ाई नहीं होता। टेल मी बाय हार्ट, लास्ट ईयर में तेरे 3 सब्जेक्ट थे, मेडिसिन, सर्जरी, गायने, सच्ची बता जितना उस टाइम अब पढ़ाई किया उतना किया है क्या? 100% I will give you guarantee. 3 subjects is an extensive, तो ऐसे 10 यूपीएससी सीएससी निकल सकते हैं। ये बोलते हैं एवरीथिंग इज आस्क्ड अंडर सन। अरे हाउ वी हैव ऑलवेज अ टेंडेंसी, कोई भी इसीलिए ही मेडिकल के बच्चों को इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क आते हैं। डू यू नो दिस फैक्ट? देख ले, सब लिस्ट लगा दे, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मेडिकल के बच्चों को ही मार्क्स आते हैं। सबको पूछो। हमने अंशु प्रिया 206 मार्क्स 2 इयर्स ऊपर। डेंटिस्ट भी थी, उसका भी अच्छा। अरे डॉक्टर को मार्क मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? इसका कभी सोचा है आपने? अरे उसको देना ही पड़ेगा। अभी हमको उन हिसाब से देखना है। व्हाई आई सेड उनको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। जब ये बात अब निकल रही है ना, तो यू हैव टू डू समथिंग। वो मैं क्या उसके बारे में बता रहा हूं। सी नाउ दे विल आस्क यू अबाउट अ मेडिकल फील्ड। अभी वो क्या पूछेंगे और आप क्या आंसर देंगे, उसमें काफी डिफरेंस है। फर्स्ट, देयर इज नो डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, राइट? तो वो कॉर्नर में जो बिठा है, क्योंकि एक प्रोफेसर है डिपार्टमेंट में, एम्स के भी इधर भी इधर से, वो बोलेंगे इधर जाके यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठना, तो ही विल नॉट डेफिनेटली। तो सब्जेक्ट एक्सपर्टी का लैकिंग है, सो यू विल नेवर गेट अ डॉक्टर सिटिंग ऑन द चेयर, अपोजिट चेयर। अरे भाई डॉक्टर ही नहीं है तो काय का डेप्थ रहेगा सब्जेक्ट में? टू बी स्क्रूड, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बता रहा हूं, पर हम में मन में जो सोच लेके बैठे हैं ना, सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ आएगा, तो फिर सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उधर जाने के बाद उनको मेडिकल फील्ड में लैकिंग रहता है, उधर उनको अच्छा क्वेश्चन आंसर नहीं देने के बाद, बिकॉज द डॉक्टर सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड नेवर थॉट फ्रॉम दिस साइड। जो बंदा कभी कोई डॉक्टर का पढ़ाई नहीं किया, उसको कुछ भी क्वेश्चंस आते नहीं,
वो चिट्ठी लेके आता है किसी से और वो पूछेगा। ये मेरा साथ एक प्रोफेसर है, आई विल नॉट टेक हिज नेम, उसका मेंस में ये इंटरव्यू में उसको पूछा ऑल केमिकल कंपोजिशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का सब, वो ऑक्सीब्यूटोन वगैरह ऐसा, और उसका नाम पूछा और वो बोला चलो इसका नाम क्या है कमर्शियल एंड इसका यूजेस क्या है, बट ही वुड टोल्ड देम दैट दिस आर आउटडेटेड, ये हम नहीं पढ़ते, हम ये नाम पढ़ते हैं, इसके बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, इसके बारे में पूछेंगे तो नहीं बता दूंगा। तो यू हैव टू टेल देम वेरी फ्रैंकली, भाई ये तेरा फील्ड नहीं है, हमको मालूम है यही है और हमको ऐसा सिखाया, जो सिखाया ही नहीं मैं वैसे कैसे बोलूं तेरे को, बट यू हैव टू don't everything to be very like sir, in our education the things are taught like this, so we are not able to correlate with what you are saying. That is the one thing you have to be very, tell them very politely, right? Second thing, अभी आपको questions पर जाए, अभी can I catch you on a patient? Yes, I can catch you. Tell me how can I catch you? Tell me. Now you say that I will do HIV of this patient. Now I am officer sitting outside. So I will say, okay, tell me doctor how HIV is done. तो तू क्या बताएगा? Sir, whether it is done from blood or serum. Right? तो बोलेगा it is done on the both. Right? And जो टेस्ट है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, एलाइजा नहीं, हम रैपिड करते हैं, रैपिड टेस्ट। अभी उनको क्या चाहिए? रैपिड। हाँ, वो रैपिड क्या रहता है, वर्ड क्या चाहिए उनको, क्योंकि वो लिख के लाया है ना यार, समझ में लेने, एंटीबॉडी, एंटीजन, व्हाट टेस्ट, वो करना रहेगा तुमको। और बोलेंगे यार तुमको HIV टेस्ट मालूम है, खाएगा MBBS डॉक्टर हो गया। अरे भाई उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारे में। हाँ, हमको विंडो पूछो, कब रिपीट करने वो पूछो यार, ये क्या पूछ रहे हैं, पर ये है, ये है, ये है, ये प्रॉब्लमेटिक। तो तुमको क्या करने पड़ेगा, सब टेस्ट का बायोकेमिकल का कैसा रहता है वो करना पड़ेगा। सीटी स्कैन का फंक्शनिंग भी पूरा करना पड़ेगा कि सीटी स्कैन का कैसा रहता है। डोंट गो इन अ डेप्थ, पर उनके हिसाब से करना पड़ता है एज अ ले पर्सन। इट इज नॉट गुड टू से कि ये बड़े बड़े लोग ले पर्सन है, हमारे फील्ड में ले है। अभी मैंने पूछा, दूसरे बोला अभी देखो मैं HIV पॉजिटिव आया तो उसके बाद क्या करूंगा, ऐसे पूछेंगे तो तू क्या बोलेगा? काउंसलिंग करेंगे। हाँ, काउंसलिंग करेंगे। क्या? योर रैपिड टेस्ट हैज बिकम पॉजिटिव, वी हैव टू कंफर्म इट। तो बोलेगा कितने दिन में आती एलाइजा का टेस्ट का रिपोर्ट? कौन सा टेस्ट करेगा? तो बोलेगा एलाइजा। व्हाट आर द अदर टेस्ट? PCR का भी है, उसका रिपोर्ट कितने दिन के बाद आता है? नहीं मालूम। ये एक्सपेक्ट करते हो। तू क्या बोलेगा डॉक्टर होके? यार आज नाम तो आने वाला है ना, क्या उसमें दिमाग लगाना। ये बोलेगा ये काम ही नहीं किया, 3 दिन के बाद आता है, मालूम नहीं। तूने Have you done your internship properly? लटक गया ना। This is the micro thinking. What you have to do? ये मैंने बहुत बार सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है, हमारे बंदों को बेसिक नहीं आ सकता। It is not possible. सोच, तेरे को जो भी कुछ मेडिकल का बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में चाहिए ना, तो इधर बैठ के सोच। अभी तुम कंसर्न लेते हैं क्या? हाँ लेते हैं। किधर रहती? एवरीथिंग इज फ्री। नहीं तो वैसा 300 रुपए एलाइजा में रहता है, कोई जाके बाहर में करते हैं, राइट? देन व्हाट इज CD4? आपको आना चाहिए, राइट? तो वो बोलेंगे CD4 काउंट कब करते हैं, उसका रिपोर्ट कितने दिन के बाद आता है, हाउ यू एक्सप्लेन देम, व्हाट ART यू शुड डू, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ART। या HIV में कुछ भी प्रोसीजर करेंगे तो ये करेंगे। This simple thing is must. उसमें मदर एंड चाइल्ड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और हम डर के उधर से भाग जाते। अभी नहीं भागना, हम उनको उधर ही खींचना, क्योंकि हमको मालूम है ये सब सुपरफिशियल आदमी है, उनको नीचे ला। कैसा नीचे बता।
Okay, doctor, tell me what is maternal mortality. तो definition बता देगा. Okay, tell me what is maternal mortality rate of India. तो बोलेगा 71 है. Tell me of your state हरियाणा. तो बोलेगा कुछ तो रहेगा. इसका महाराष्ट्र का 35 रहेगा, तेरा कुछ तो रहेगा. केरला का उससे कम है. So why such discrepancy is there? अभी इधर तो उसका ट्रैक अलग हो गया, हमारा ट्रैक अलग हो गया. अभी उनको हमारे ट्रैक में कुछ खींचना है, राइट ना सर? क्योंकि उस एरिया में जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम है, उस एरिया में जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम है. हमारे क्या सर? द डिफरेंस मेजॉरिटी इज बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ह्यूमन रिसोर्सेस, राइट? बिकॉज उधर ज्यादा नहीं बोलना, बिकॉज द कॉमनेस्ट कॉज इज हाइपरटेंशन, पीपीएच, ऑल दिस रट्टा मारा है वो हमने बोलना है. एंड द कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर इज एनीमिया. उधर से और ज्यादा खींचना, एडमिनिस्ट्रेशन में मत जा. वो बंदा थ्रू आउट लाइफ उसमें ही पड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन में. सर देयर इज अ चेंज ऑफ एज पैटर्न ऑफ मैरिज. किसके ऊपर आना है तुझे? सर इफ आई गो टू द वार्ड I will see 30 patient which is having a small baby. Ayusha, 30 patient will have a PH, 30% will have diabetes. तो diabetes, obesity पे आना, you will win the race. ऐसा लग रहा है तुझे? diabetes, obesity पे तू अच्छा काम नहीं करेगा? करेगा, why not? तो बोलेंगे ओके, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द डायबिटीज. सर सी देयर इज अ कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन द ओबेसिटी ऑफ द इंडिया. द डायबिटीज वैल्यू इज लाइक 1 in 6 is having a diabetes. They will say what is the problem? The problem is faulty eating. Everyone knows what are the problem. It is given in our books. Priority wise रखना है. Then type 1 personality, exercise है. ओबेसिटी का प्रॉब्लम क्या है? टेक हिम ऑन अ माइक्रो लेवल. सो ओबेसिटी मेजर प्रॉब्लम इज दैट द लिपिड्स आर stored in the body and the main internal cell burst. This cell goes in the blood vessel and these are identified as a macrophages and whole body starts acting against it like enemy. This is called as active inflammation, and this active inflammation will have detrimental effect on our body. तो बंदे को ओबेसिटी तो हो जाएगी, काय का detrimental आएगा. अभी देखो, I have changed the stance. ओबेसिटी का फुल क्वेश्चन लिख लिख के घिस के तो तेरा मेडिसिन हुआ है क्या नहीं हुआ? तो मैंने कैसे बताया देख. Then he will say because he will be curious, क्योंकि वो तो थोड़ा सा ओबेस रहेगा. बोले क्या कैसे कैसे हाउ टेल मी. तो मैंने कहा सर इट विल हैव अल्जाइमर. उसका मेजर प्रॉब्लम वही है, अल्जाइमर. क्योंकि दिमाग, हर बंदे को लगता है हम ज्यादा दिन रहने वाले हैं, हमारा दिमाग ज्यादा चलेगा. ओके अल्जाइमर. देन मैलिग्नेंसी रहता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, राइट. थर्ड इश्मिक हार्ट डिसीज coming at very early age. Why? Because of the deposition inside the vessels and the raw area formation and identifying as different of the body and formation of the clot. Everyone knows. ये तो हमारा वो, पर इनको लेमन लैंग्वेज में ले, ये उनको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा. But diabetes, why we are increasing the diabetes? वो भी पूछेंगे. Does this diabetes values have changed? In American society it has changed. Now they are decreasing the sugar levels. And I say, sir, it's okay. Let the companies change. But there is always one thing which remains in constant, which is insulin glucose ratio. इसके ऊपर आना, क्योंकि उसको कंपनी में लेके जाना है और डॉक्टर पैसे खाते ये बताना है. तो साइड मारना उसको.
इंसुलिन ग्लूकोज परसेंटेज में लेके जाना. We always not go by the sugar levels. We cannot drop down the sugar levels immediately. It will have hypoxic effect. Insulin glucose level is very important. So this is the current scenario. Current scenario में sir, there is urgent need of counseling. Why? Because sir, we have a very less amount of हमारा साइकेट्री का लोग हैं एमडी डीपीएम रहता है. We have very less faculties who will counsel about these things. But now the whole scenario has changed. Youngsters are in a continuous phase of depression because they have got some various degrees but they cannot apply it. Their expectation from the life is very high. Male-female ratio has very changed. There are 20 to 30% males who have not married yet till age of 40 in our villages. They have a very bad ratio. Second, the females, as they are in less in numbers, their expectations are very high. So they are increasing the divorces का जो कुछ problems है. Make it very soft. अभी कैसे है, women empowerment important है, इसलिए against women भी कुछ नहीं जाता वो. You have to be balanced, right? So ये this we require a greater amount of counseling. इसके ऊपर तुम बोल सकते हो. अभी उधर कुछ पूछा था कि what are your qualities and tell me one bad quality of you and how you can improve. मैंने कहा sir, I have recognized one quality during my first period of internship. It was very hectic for me or very tedious because I was very restless to listen someone. But over a period, I started noticing one thing. My fellow doctor is able to clinch a diagnosis because of his active listening. So I have corrected that. क्या वो बोलते हैं ना कौन सा पॉइंट तुमने लाइफ में करेक्ट किया. This is a perfect example. वो मुड़ ही नहीं सकता हमारे से. इससे क्या एक्यूरेट एग्जाम्पल हो सकता है? किया नहीं क्या करा है ना एमबीबीएस में, तो वही बताना है ना भाई. कुछ अलग थोड़ी हम बोल रहे हैं. Then they will say ये हमारा बैड पॉइंट होगा and how you able to correct it. तो गुड पॉइंट क्या है? What is the good point about you? मैंने just sir, we during our residency or during our MBBS, we come across changes in definition of pregnancy induced hypertension. अभी देख कैसा बताना है, गुड पॉइंट बताना है. During our MBBS, we have come across the changes in the definition of PIH. During our third year, the definition was different. Fourth year, it was different. And internship, it was different. Right or wrong? बराबर है ना? PIH का बाद में इंक्लूड किया, प्री एक्लाम्सिया को बोल दिया, उसके बाद सीरम क्रिएटिन लगाया 1.1, उसके बाद लिखा डबलिंग पॉइंट रहेगा तो ही प्री एक्लाम्सिया बोलो. Then said that, then why this happened? It was clinically oriented. So what God our teaching impart us is that you have to change for the better every time. Don't stick up for the old ideas. Change in betterments of others. And I experienced in my life. And I am with that. Initially, we were writing down the case papers. Initially, during our third year, second year, we writing down the case लेने को बोलते हैं ओपीडी में. In government hospital there are very few people. बोलते हैं थर्ड ईयर वाले बच्चों लिखो, हिस्ट्री लिखना चालू करो. किया है क्या नहीं तूने? हाँ किया है ना. अभी नहीं होता. अभी कंप्यूटराइज में इंटर्नशिप किया, ये चेंज नहीं किया, ये डिजिटलाइजेशन किया, वो नहीं एक्सेप्ट किया. So we are the person who has silently accepted without any queries. Very few department has accepted this such a heroic change. We have come with a paperless. हमने तो paperless किया. So we are helping the economy. तो ये भी बात कर सकते हो.
तो तेरा ड्रॉबैक क्या था, तूने कैसा करेक्ट किया, तेरा एक्टिव पार्ट क्या है, आई एम ऑलवेज एबल टू चेंज, आई एम एक्टिव लिसनर। मैं हर समय में जिसमें डाला उसका कलर लेता हूँ, जिसमें डाला उसका कंडीशन लेता हूँ, बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माई वैल्यूज एंड एथिक्स। हम सिर्फ पेशेंट के लिए बदलते हैं, बाकी के लिए नहीं बदलते। दैट हैज टू बी वेरी पॉइंट, क्योंकि वो बाद में बोलेगा तू पैसा लेगा तो ये करेगा क्या, तो बोलते क्या वी आर वेरी प्रिंसिपल्ड। वो बोलेगा कैसे, बिकॉज आवर टीचिंग नेवर, मेडिकल टीचिंग नेवर आस्क यू एवरी टाइम व्हाट इज हिज इकोनॉमी, कभी नहीं पूछती। इट इज इमटेरियल, फीवर आया है वो श्रीमंत है या गरीब है, फीवर इज फीवर, वी ट्रीट देम, so it is not in our scenario only। तो ये हमारे से कुछ ही नहीं होता, वो कौन है ये हमारा, it is irrelevant that who is he, what he is suffering from and what correction he needs and what his social correction should be there and what his occupational, if he is a tractor driver and he has a lumbar spine problem, then he has to change the occupation। So we not only advise, we always advise them how to have a balance of psychological, physical, social and economical। नहीं करते तो इससे ज्यादा क्या रहेगा। सर ये भी पूछते हैं ना, हाँ, तो इससे क्या पूछेगा, तो और क्या पूछेगा। पर तुम दिमाग से ऐसा चल रहे हैं यार, वो आके एमबीबीएस में पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसका क्या हो सकता है मीनिंग, नहीं, वो पूछेगा ओके खान टेस्ट कैसे करते हैं, सिफिलिस का टेस्ट कैसे करते हैं, टीब एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या रहता है, फीवर प्रोफाइल करते हैं। वो बोलेंगे कि देयर इज ऑलवेज अ वन वर्ड, ये बार बार यूज करना। व्हेन यू आर इन अ नो मैन्स लैंड, द ओनली थिंग इज द एडॉप्शन। डू यू नो दिस सेंटेंस, लिख के लो, if you are in the no man's land, the only thing is the adoption। And this is the principle we are breathing in and out। रात को लेबर रूम में अकेला बंदा है, you have to do everything। पर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कैसा, आपको आईटी के बारे में बताना है या आपको डिजिटलाइजेशन के बारे में बताना है, एजुकेशन पेशेंट का या लोगों का कम है, तो तुमको स्टेप बाय स्टेप उसको लेके जाना पड़ेगा। सो यू आर अडॉप्टिंग। आपको बैंकिंग सेक्टर में मोबाइल एंड फोन बैंकिंग लाना है, पर हमारे बंदे को इंग्लिश नहीं आती। आपको फीमेल्स को एम्पावर करना है, बट दे आर इलिटरेट, वी आर नॉट अ स्किल्ड प्रोफेशन। अभी हमको स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो स्किल ही नहीं है। So we are better placed because already we are doing everything like this। अभी कौन सा सेक्टर रह गया है सिविल सर्वेंट का कि मेडिकल फील्ड का नॉलेज यूज नहीं हो सकता, मुझे बता। So why are you saying that I am wasting my degree? तू सिर्फ दवाई दे रहा था, नहीं, तू काउंसलिंग भी कर रहा था। No, the people are such a depressed because of this thing। Who will talk with them? Who will give SOP? SOP डिप्रेशन का कौन बनाएगा? See, there is one thing, is ethical consideration and application of it। मैं आपके एरिया में नहीं जा रहा हूँ, पर there is a पंकज पटले, he is also MBBS graduate। He applied to the UPSC interview on 28th of January, and he sent the list, the questions asked to him। Lifestyle diseases, one question related to lifestyle diseases, another body mass index, what to do despite high BMI, boxing, Mike Tyson example, वो COVID vaccine hazards, genome sequencing, uses and should I do it, then GBS outbreaks, like Pune also asked by me in today's mock interview। Yes, na? Yes। mutation evolution, radiology impact rates, हाँ,
रेडियोलॉजिकल हैजार्ड्स. Okay. Then measures for it. How you will use Measles. medical knowledge? वो तो ये address हाँ. for this question. How will you use medical knowledge? वो तो सर ने explain कर दिया वो question. Why fertility centers are increasing? Fertility centers are increasing. We will take this question. And then last related to MBBS is how India handled COVID. अभी देखो फर्टिलिटी के बारे में करेंगे. पंकज वाढलेगा. हाँ ठीक है. See, why infertility centers are increasing? First thing, the females are graduating in an exponential phase. So they want to become a settling. They want to have a settlement. If you ask any female, now I'm telling you broad, then you take the crisp and you answer. And if you ask any female and stop her, say, I'm not settled yet. She doesn't know settlement never happens. It's a continuous state which goes on changing. But we want that मुझे settlement हुआ. That is the pseudo feeling we have to remove. Now this female, after entering her in her graduation and completing graduation, she reaches at a one stage that she wants to get self-employed. Then she opts for post-graduation. ये होने के बाद then she wants to have a good job. The job demands how much you have experience. बाद में अच्छा पेमेंट देते हैं. Again 3 साल जाते हैं. She reaches up to 30 to 35. Now during this aging increases. लिख के ले लो ये सब. Aging increases. In a fad of settlement and having a more amount of a payment, there is a change. अभी वो उसको accurate करो, छोटा words में बाद में करो. She goes for aging. Now, why I said aging? See that infertility. Sir, the abortion rate, faulty implantation rate, or baby take home rate at the age of 30 is 5%. एकदा परत values once again you check the values कारण आता मी एवढा accurate नाही. And after that 35 it increases, abortion rate increases to 15%, and at the 40 it's around 30%. Per year it is increase in 5% rate. Implantation failure यानी कि baby take home. So what it clearly indicates? Second thing, as the age increases, babies are becoming more and more aneuploidy because there is change in DNA composition and anomalous babies percentage increases. वो भी ठीक से करो because government has asked 35 के above सबका amniocentesis करो. ये मालूम है क्या? नहीं तो लिख के ले लो. Above 35, if you open F form, above 35, government said that you should test directly amniotic fluid for the problem of DNA. Third, because of the aging, vascular aging occurs and uterine vessels gets aging. So there is faulty implantation of placenta. Faulty implantation of placenta which will reflect in the IUGR. Hence the progeny will have more of diabetes and more of IUGR and more of a mental retardation. This is a really hazardous situation we are entering. Birth rate has decreased. Aging of the uterus has already happened. The sperm quality and the ovum quality is not good compared with the 20 years. They are exposed for multiple genetic diseases. They are exposed for chicken. Chicken में क्या रहता है? E2 रहता है. लिख लो. E2 is banned. Still we are injecting E2. हर पोल्ट्री में E2 इंजेक्ट करते हैं. उससे क्या होता है? The gents get gynecomastia. प्रोलैक्टिन इंस्टिल करते हैं पपैया में मैच्योरेशन के लिए. राइट? उससे क्या होता है? प्रोलैक्टिन लेवल्स हिलते हैं. उससे क्या होता है? प्रीकॉशियस प्रेगनेंसी होती है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है लड़कियों में. सो द एज ऑफ द प्यूबर्टी हैज डिक्रीजिंग.
राइट और रॉन्ग? थर्ड, CO2 जो हो रहा है, मैक्सिमम पॉल्यूशन ऑफ CO2 से क्या होता है? इंक्रीज इन द फीटल इंट्रा-यूटेराइन डेथ्स. And India is the topmost country which is having a stillbirth record, which is around 57 in 1000. और WHO के चार्ट पे जाके देख ले स्टिल बर्थ का, India is top at the top. In spite of having so much doctors and infrastructures, we are having a top in position of IUDs. Why? वो भी अभी इतना डिटेल लेके जाना है तो लेके जा. We are faulty. सोनोग्राफी कर रहे हैं पर एब्डोमिनली ठीक से चेक नहीं कर रहे हैं एंड IUGR इज बिकम मोर कॉमन बिकॉज ऑफ द लेट मैरिज. ये 3 रीजंस है. तुमको चाहिए तो लिख के दे. ये किसने बताया? ये बताया है यूके ने बताया है. यूके के फॉक्सी ने बताया है. उनके कोर्ट में जब केस चली तो उधर से रिपोर्ट आया. हाँ, तो स्टोरी आधी आहे. यूके मध्ये काय झालं? सी व्हॉट हॅपन इन यूके. देयर वाज वन फीमेल हू गॉट अ IUD. Then she tagged it in her Facebook, and there were more than 10,000 who patient tagged everyone. And मेरा भी, I have also IUD. I listened to the doctor. Doctor always says normal, everything is normal. And how I got a baby died. Then they filed a suit against all these doctors. It's an NHS in UK. So then judge put an inquiry and they asked NHS, hey Baba, what is the problem? You discuss it with your association. They said that we got 3 problems. First thing, doctors are not palpating in a better way. Second problem, the diagnosis of IUGR is not done properly because of the faulty ultrasonographic menus. And third thing, increase in the cases of diabetes because of the aging. ये ट्रायल पे काम किया गार्डोसी ने and he got a medal and he was recognized in UK because he has dropped down all these intra-uterine deaths. And this India requires this. गार्डोसी तर टाकलं की तुला येईल. गार्डोसी. हाँ घे. आता दूसरा अजून एक घे. और $1 मिलियन क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर ऐसा लिखना है. अभी उसने बोला था, अपने क्या बोला था? माइक टाइसन दो ही इज फैटी, व्हाई क्या काहीतरी आहे ना, व्हाई माइक टाइसन BMI and despite that he is boxer. हाँ, तो उसमें क्या तू बोलेगा? उसमें सर because the BMI criteria is not it's a sole indicator. We are neglecting bone mass and muscle mass in the. ये बात है, बट हिट इट ऑन द, क्योंकि तेरे पास सिर्फ 30 मिनट है और तेरे को हमारे एरिया में लेके जाना है. तो हिट कैसा करेगा? सर BMI doesn't calculate the fat index. What we are interested in fat index? Why? Because in the centralized fat got absorbed. यानी वो बाद में जेवल चालू करने का उसको ये T4 and IL6 एंड उसके ऊपर लेके जाने का, इंस्टेंटली लेके जाने का, अंदर ही लेके जाने का, उसको दिमाग ही नीचे देने का और बाद में उसका लेके आउटपुट देने का. हमको उनको बोला है अल्जाइमर बहुत होता है, ये कार्डियक डिसीजेस बढ़ जाते हैं. हाँ, मुझे मेरा इंटेंशन समझ में आया क्या? हाँ, अभी तू कैसा बोला? यू ट्राई टू एक्सप्लेन दे. अरे मत एक्सप्लेन करना, ट्राई टू हिट. तेरे एरिया में बॉल आया है ना, तो क्यों छोड़ रहा है? वो बख्श देता क्या तुझे? परसेंटेज में बख्श देता क्या? नहीं देता. अभी वो पूछेगा कोविड क्या सर, व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाउ इंडिया हैंडल कोविड. हाउ इंडिया हैंडल कोविड. तो पहला बोलना है दिस इज अ नेगेटिव क्वेश्चन अगेंस्ट द मेडिकल फैटर्न. नाउ यू हैव टू मेक इट. सर आई एम वेरी लकी. I was born in a case of heart. This was the first disease. Is a epidemic or endemic? क्या था वो? Epidemic, pandemic. तो वो क्वेश्चन पूछेंगे पैंडेमिक क्या, एपिडेमिक क्या, एंडेमिक क्या, ये भी ध्यान में रखना है. हाँ, तो it was the first pandemic which I saw. Sir, we are
from our ये 1947 we are in a continuous, ये सबके लिए एक ही क्वेश्चन है, तो IAS बनेगा ना, तो भी यही आंसर सबको देना है। मैं बताता हूँ कैसा आंसर देना है। We are in a continuous stage of improvement since 1947. The doctor and hospital ratio was totally different. We were improving on our infrastructure as well as the doctor human resources. We have achieved to some extent, but not up to what we are thinking as a superpower. ऐसा बोलो, हमको सुपर पावर बोल रहे हैं, उस हिसाब से नहीं किया, but we are not a bad performer. We have an excellent record of tackling these type of epidemics with the help of vaccination, and we have proved that. ये बोलना हमारा रिकॉर्ड ही है वैक्सीनेशन पे। हमने स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट किया है, हमने पोलियो भी इरेडिकेट किया है, पर इसमें हमारा हेल्प क्या हुआ? We installed digitalization vaccination. So anyone goes in a passport office or any, they will immediately show this is my vaccination schedule. Okay, so you have to tell that we are in a phase of vaccination, तो हमारा अच्छा हुआ. It is the area of a ventilatory support or a respiratory support, but this disease is of a respiratory illnesses where we get to have a lung damage. Don't come and directly tell them very freely. It is the area of respiratory problem, lung damage problem, which requires some ventilation supports in the form of NIPP or in the form of invasive ventilation, right? Invasive ventilation, intubation. So usually in a routine cohort, such types of patients are very rare, and we have very limited resources of ventilators, which we infrequently or very rarely we use. So definitely there was imbalance between patient care of respiratory support, which the demand was there, but we opted that, we adjusted that, and we make use of that, and we have very less mortality. The mortality happened, अभी इसका तुमको परसेंटेज मालूम रहना चाहिए. Mortality happened is one of the least mortality in the world. Do you feel we have underperformed? But definitely we need to have to tackle such situation, right? We need to tackle such situation, which already we are doing. We are increasing medical college for every district. उसको हमारे एरिया पे लेके आ. कोविड तो छोड़ दे, हमारे एरिया में घुस. We are installing every medical college in our district. We have speciality. हमारे यहाँ speciality कौन सा है? कि अभी infective ICU बना दिया है हर कॉलेज को. Geriatric वार्ड एंड यूनिट बना दिया है हर वो, ये भी तुमको याद में रखना है. देन कैंसर का डिटेक्शन सेंटर का भी वार्ड बना दिया है, ये भी याद रखना है. और दूसरी बात, इसमें पूछा ही नहीं इनको, डॉक्टर्स पे असोल्ट हुआ ना, वो रेप हुआ था ना, वो तो डेफिनेटली पूछेंगे यार तुमको. तो तुझको क्या बताना है कि व्हाट थिंग्स हैव चेंज्ड ऑन द ग्राउंड. बदलाव क्या है? एवरीवन हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट. डॉक्टर ऐसा बोलना चालू करना है, हाँ, everyone has accepted the fact that doctor is soft target. We have to work in odd hours, irrespective of who is he or she, right? उनके लैंग्वेज में उसका आंसर देना है. Definitely there are infrastructure problem and hence the security problems. Expectations of everyone is high. Government has changed and government has told that every incident reporting must be there within 24 hours. We have to put FIR of that
And who has to put? Dean has to put, not that female. डीन को समझ में भी आया तो उसने FIR डालने का है उसका within 24 hours. And all governmental authorities, Home and Ministers order them that they have to act immediately. ये हमको मालूम नहीं. पहला क्या रहता, 100 मीटर्स में एक सिक्योरिटी गार्ड था 100 स्क्वायर फुट पे. अभी उधर का वो हटा दिया है. कैपिंग ऑफ द सिक्योरिटी एंड एरिया हैज चेंज्ड. उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरा हैज नो बाउंड्स एंड बॉटल. कैमरा का इंस्टॉलेशन में पहला लिमिटेशन था, अब कुछ भी नहीं है. राइट, ये तो बता सकते हैं. देन व्हाट्सएप ग्रुप हैज फॉर्म. कॉलेज में भी क्या बना दिया है हमने फीमेल एम्पावरमेंट के लिए. उसका वो जो रहता है ना, महिला काय ते इंटरनल कंप्लेंट. हाँ, कंप्लेंट साठी ते पोर्टल तयार केलंय. वो भी देखना पड़ेगा. अभी मैंने नाम भूल गया उसका. वो पोर्टल देखना पड़ेगा. उधर कैसा रहता है कि एनी फीमेल वो वर्क लाइफ बैलेंस में रहता है. वर्क में कुछ प्रॉब्लम आए देन शी शुड हैव टू इन्फॉर्म. उनका जो रहता है दैट कमिटी का हेड, उसके पास रिटन कंप्लेंट आएगी तो बाद में उसको कुछ पूछते नहीं. इंक्वायरी इज पुट एंड ही हैज टू प्रूव द नेम. जिसका नाम लिखा है ना उसको प्रूव करना पड़ता है कि हैज नॉट डन द पार्ट. बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे. हाँ, अक्यूज पे आता है. इसके ऊपर कुछ नहीं आता. ये भी बदलाव अच्छा है. दिस विल क्यूमुलेटिवली हैव इम्पोर्टेंस. तो ये तो तुमको लेना ही, लेके जाना ही चाहिए. तो over a period we have improved in some area. We are still lagging, no doubt. Medical field is continuously changing. Accepted. Now we have a habit of changing, and we will do better. और क्या पूछेंगे? क्या क्या लगे? थोड़े वो बोलेंगे टेल मी क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस. घंटा पूछेंगे. बोलेंगे व्हाट इज द सीए सर्विस का क्लासिफिकेशन पूछेंगे? नहीं पूछेंगे. मेरे से मॉक में बेसिकली ये पूछा था कि हमारी स्कीम्स है ना, गवर्नमेंट स्कीम फॉर एग्जांपल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है या फिर RMNCH प्लेन है, हेल्थ मिशन है. तो व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस दे आर फेसिंग, व्हाई वी आर नॉट अचीविंग सच टारगेट्स एंड व्हाट आर द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग. देखो ये सबके पीछे एक बात है. इनको एक बात बताना है. हाँ, व्हाट इज द सी उनको बताना है. सर, we have a rural intention problem. We have a rural intention posting as well as urban intention. I was there in rural intention. Do you have ever seen how sputum is collected? If that a lady, ALM lady with white sari goes at home and asks for sputum, no one will give sputum. It is a social problem that elimination is not happening. इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. सोशल स्टिग्मा है. लेप्रोसी क्यों नहीं इरेडिकेट हुआ? सोशल स्टिग्मा है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम HIV सोशल स्टिग्मा है. जिसमें सोशल स्टिग्मा नहीं वो तो सब ठीक हो गए. सेकंड, ट्यूबरकुलोसिस इज अ डिसीज ऑफ इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी सुधर जाएगी तो वायरल बर्डन कम हो जाएगा या ट्यूबरकुलर बर्डन कम हो जाएगा. HIV और इसका दोनों का सेम है. So nutrition focus has been tackled yet. So that's why we have chosen the thing like indicated in the TV program recently. नहीं, अभी हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं ना, यू आर राइट, यू आर 100% राइट, बट हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की चांस करते हैं बिकॉज वी हैव बैड हैबिट ऑफ MBBS का. ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क आएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. इधर वो नहीं है. यू हैव टू कैटेगरिकली टेल देम. अभी तो तेरा प्रॉब्लम क्या था, व्हाट यू आर सेइंग इज टीवी क्या पहले छोड़ दे. उसके पहले क्या बोला था तू? अभी क्या बोला? व्हाट यू आर सेड जस्ट नाउ? न्यूट्रिशन पार्ट. न्यूट्रिशन, फोकस ऑन न्यूट्रिशन. सर, malnutrition is still a problem. Under 5 malnutrition is still in India relevant. Immunity is a major hurdle.
Altering dietary habit is a routine in India. No policy focus on them except midday meal. That is also removed many part. खत्म. तुला काय वाटतं? What do you feel? Is there another answer? This is the reality. Sir, Manesh, I will give you one example. Why anemia is not eradicated in India? Because, sir, anemia has three components. First, according to the Harrison, anemia is divided. अभी ये बता ना तुझे. According to anemia, it is divided like the evident anemia. यानी कि the nutritional, the bone content of the iron content in the body is okay, but HB is low. Second, when HB is low and iron depletion is there. And third, both are severely depleted. Right? According to them, they are classified. But who does this classification is serum ferritin. जब कोविड हुआ तो सबका serum ferritin कर रहे हैं. Anemia prevalent है, no one is doing serum ferritin. If I become IAS officer, I will start doing serum ferritin. Because this will give me prospect that which the patients will you developing anemia. Definitely ये भी अच्छा बताने का. See, the Anemia Nirmoolan Bharat 2018 is a fantastic program. It is affecting the age group. Not only that, they are selecting the preschool and school age. वो तो वही है, पर ferritin ऐड करना चाहिए. और हम कोविड थे तब सबको ferritin कर रहे थे. अब क्यों नहीं कर रहे? So we have infrastructure, we have everything, lab in place, but we are not doing. Such slight changes are there, will definitely change the scenario. वो उनको पॉजिटिव बात बताना. सोशल काउंसलिंग हर में बताना. एवरी बर्थडे स्टार शुड कम एंड से दैट आई हैव डन माय एचबी. व्हाई नॉट? बाकी तो तुम बता रहे आई हैव डन माय एचबी, एचआईवी, ब्लड ग्रुप, तो बताना चाहिए ना. बाकी तो सब आई हैव बिकम वोटिंग, वैसा ही बताना तो हेल्थ में बदल हो जाएगा. इट इज द सोशल इश्यू. This is the social acceptance. See, Manesh, polio is eradicated in India but not in Pakistan because of the social issue. Because of बूंद नहीं लेते ना, पोलियो का ये नहीं लेते. It's same. अजून काय? और कुछ? There is another guy, Raj Bhojni, from Gujarat. His interview took place on 14th of January. Very few questions related to medical science, but you are like, are you sure less qualification like exams not required for MBBS abroad? And why people go abroad for study? They don't require more qualification. Is that the reason? And do we have any problem? नहीं sir wait एक component. Second component है why the students go for the abroad. Right. See, we should understand very frankly, sir. MBBS is the graduation which is acceptable and have a social value, high social value. When the person works, he will get not only the economy but also mental satisfaction and a social value. Everyone start respecting as if he is a god. So everyone wants to be a god. So I have done my internship. पेशेंट हमारे पैर छूते हैं. अच्छा हुआ. छुआ है क्या नहीं एक पेशेंट ने? हुआ है तेरे साथ. तो सबको चाहिए ना पैर छूना. किसको भगवान नहीं बनना. तो whatever the hurdles they will face, they will go and opt for such a nice degree. तो फॉरेन में जाना इज नथिंग बैड. सेकेंड थिंग, नो डिग्री इन इंडिया. नो डिग्री इन इंडिया आस्क फॉर अ क्वालिफिकेशन. Anyone can take any one degree, only prerequisite has to be fulfilled.
क्योंकि उसका वो पर्सनल राइट है, तुम्हारा को राइट है, वो उसमें पढ़ा ही रहेगा ये वो डाल दे उसका नंबर। तो हर राइट टू एजुकेट, राइट टू हाँ, तो उसका खुद का राइट है। हाउ कैन वी प्रिवेंट? बाहर गए तो गए ना, अच्छी बात है ना, दे आर केटरिंग वर्ल्ड का पेशेंट, वसुधैव कुटुंबकम डालना, गए बाहर तो क्या बुरी बात है, उसको मूडी बदल डाल। हाँ सर, हम मेरे घर में क्यों सोचे, मेरे जिले तक क्यों सोचे, मैं मेरे राज्य तक क्यों सोचे, मैं इंडिया तक क्यों सोचे, मैं मेरा जिंदगी का पूरा देश को या पूरा दुनिया को फायदा होना चाहिए। सेम विद आवर, ये हमारा जो पोल्यूशन का ये चल रहा है ना, एनवायरमेंट का जैसे सेम थिंग, वी रिक्वायर्ड polio to be removed from earth, we require TB to be removed from the earth, and these people will definitely help me। तो अच्छा है यूक्रेन गए। They added one more sub question to that because the reason is less number of seats in India, or whether the less qualification is required in abroad. Is this the reason? Definitely there is less number of seats in India comparative with our population, one thing, but it is not the less qualification. Why qualification is required for MBBS getting a degree? It's right। अभी इंजीनियरिंग को क्वालिफिकेशन लगता है क्या? You ask them, for engineering there are seats vacant, BCom there are seats vacant। If the day will come when MBBS seats start vacating, then the qualification has no meaning। Qualification doesn't require, it is his intent to become a serving doctor। उसका इंटेंट अच्छा होना चाहिए। भले एक 4 साल में बच्चा देखो, अभी सब उधर जाके वैसा ही बोलना है अगर घर में, हाँ सर 4 साल में पास हो गया, 10 साल में पास हुआ है, इट इज इमटेरियल सर। His main intention is to serve India, and we should respect that। Everyone doesn't have a equal IQ। कोई बंदे 2 घंटे में पढ़ाई करके पास हो जाते, कोई रात भर करता है, बट ये ज्यादा क्वालिटी का है, वो ज्यादा क्वालिटी का एक मायने में नहीं रहता। What we require in a medical field is persistence and perseverance। मनेजा, ये भी सिविल सर्वेंट का ही क्वालिटी है, क्योंकि वो लगा रहना चाहिए। फीवर आया टैबलेट देना चाहिए, एंटीबायोटिक ये यूज नहीं हुआ तो दूसरा यूज करना चाहिए, और उसको छोड़ के ऐसा हताश होके छोड़ के निकल नहीं जाना चाहिए। हमको ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग नहीं लगते बोलने का, हमको डेडिकेटेड एंड कंटिन्यूअस लगने वाले लोग लगते हैं। वो हमारे में क्वालिटी है ही एक वजह से, तो हमको ही सिलेक्ट कर लो भाई। हाँ, और कुछ देखो, तुमको पॉजिटिव एटीट्यूड से जाने का, जाके फोड़ के आने का। और कुछ क्वेश्चन पूछो। सर बॉन्ड का क्या बोल, बॉन्ड अगर किया नहीं है तो? बॉन्ड नहीं किया तो सर बॉन्ड करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो डोंट बिकम अ वेरी आइडियलिस्टिक चाइल्ड। इधर आने वाले बंदे क्या आइडियल है क्या? अबे तू बाहर आ गया मेडिकल कॉलेज से, यू आर नॉट आइडियल पर्सन नाउ, because you have to manage all nonsense as well as sense only people, so you are the best person। अगर ध्यान में तो अभी तू क्या पूछेगे, बॉन्ड किया है कि नहीं? सर आई एम गोइंग टू डू अ बॉन्ड मैनेजर। सो व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डू बॉन्ड? बिकॉज आई डोंट गेट द सीट मैनेजर। आता महाराष्ट्रात सुद्धा एव्हरीवन इज नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड ऑन अ बॉन्ड बिकॉज द सीट्स आर फुल। तुला मिळालं का? मी अप्लाय आता केलं होतं तेव्हा मिळालं नाही, पण आधी सांगायचं सर आई अप्लाइड बट देयर इज नो वैकेंसी, वो चकरा जाएगा। सो आई एम इन अ वेटिंग लिस्ट बोलने का, as soon as I will get I will go। Like they also asked me, like you have passed in 2022, but you have don't doing any employment in medical sector, so why you are unemployed since the time and preparing and wasting your talent in the preparing for civil services? Same question to Ryan as well. So I told them, like I was also preparing for the simultaneous exam in the medical sector, and I successfully cleared medical officer exam in Haryana, and the document verification has not been done. नहीं नहीं से
in a they are office people. They are office people. Give only one single answer and give answer who like a child. जज में कोर्ट में कैसा रहता है? जज gives judgment like a child. Complicated answers are not entitled in administration. Right, sir? The answer should be like a child, unbiased, no left and right. अभी तुझे पूछा 2 साल क्यों लगे? Sir, when I started reading Lakshmikant, I was flattered. I started thinking how devotion was there when I started reading Spectrum. I started living like I am in a freedom zone. So I was such a involved in the study. Before doing my MBBS, I was a 12th standard student. But during our 11th, 12th, we are not getting involved in that. But now I am at a teenage. I am at a Kumarini age, whatever you are a youngster now. So at this age, I am get involved in all this. So I was doing very nice study. I never wasted my single second of my life. Like sir, the issue with me is like when family background is very like I have feel that okay, my father is laborer. So they are saying that like you have an MBBS, you have opportunity to work and do some help to your family. Yes. So that's why I told them कि like I was preparing for the exam to get an employment. हाँ. That's why the answer. जब अभी ये लेबरर है और तू काम क्यों नहीं किया ऐसा पूछा. The prefix to that, earlier they attached this thing with my occupation of my father. Then they asked this question. Like sir, the preparing for 2 exam is very tough, so it takes time. So that's why which exam? The medical. बीजे ने देना ही नहीं, हम तो जाने ही नहीं. नहीं सर, मेडिकल ऑफिसर का के लिए कर रहा था कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में. तो उनको बोलना मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम दिया था, वो सिलेक्ट ही नहीं है. वो नहीं हो गया सर. अंडर प्रोसेस है. It is under process. No, not yet. I have employed. मैंने कहा my pass पर अभी तक कुछ आया ही नहीं. क्यों नहीं आया? आने वाला है सर. देखो ये सब है रहता है ना. अभी कोई आईएएस को पूछेगा यार ये नहीं हुआ, हाँ होने वाला है. कोई मिनिस्टर बोले हाँ वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, अभी बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे. थोड़े बोल रहा है कि क्यों नहीं बनाया, तो उनके जैसा आंसर्स उनको अच्छा लगता है. So I should tell like the process, it is under process. नहीं वो चल रहा है सर. एनी टाइम आई विल गेट द अपॉइंटमेंट. अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं सर, देयर आर नो वैकेंसीज. इट विल बी देयर. आई हैव पास्ड, इट विल बी एनी टाइम. इन मीनवाइल आई वाज डूइंग दिस. So in my mock interview, I told them frankly that sir, I don't. और दूसरी बात क्या है, तो ऐसा क्यों बदला है, सच क्यों बोल रहा है सर? सच ही क्यों बोल रहा है? तू बोल रहे ना इधर कुछ तो हॉस्पिटल रहेगा पहचान वाला. आईवीएफ सेंटर है ना राइट साइड पे, तो मैं रात को सोने को जाता है. एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन मांगते हैं. हाँ एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पूरा ढूंढना पड़ता है. फिर नहीं मतलब फिर नहीं बदला. फिर वो इशू नो इशू नहीं. वो तू नहीं बताया. आई हैव अप्लाइड दैट, आई गॉट सिलेक्टेड, बट आई एम स्टिल इन दिस. हां बस यही बोला था मैंने कि एज अ प्रोसेस आई हैव नॉट टेकन द जॉब येट. देयर अ प्रोसेस. यार ये बीए बीकॉम को ऐसे पूछते क्या रे? नहीं पूछते. नहीं ना. अब देखो सी टू माय पर्सन, माय एमबीबीएस स्टूडेंट ना शुड बी एट पार. डरना नहीं है बस. वही हम अच्छे हैं, हम अच्छे जाएंगे, हम छोड़ के आएंगे. दैट पॉजिटिव. मैं इधर क्यों आया है? पॉजिटिव एटीट्यूड के वजह से आया. तू जा, काम हो जाएगा. क्यों नहीं होगा? अरे उनको इतना अच्छा बंदा किधर मिलेगा ना. तुझे क्या लगता है उनको मालूम नहीं तुम अच्छे हो? Why they are grilling you ना? क्या सर? That's correct. The level of maturity in MBBS students Is very high. तुम्हारे जितने इंटरव्यू दिए ही नहीं किसने. एवरी सब्जेक्ट हु हैज अ प्रैक्टिकल. उनको पूछो सर एमबीबीएस होने तक उन्होंने कितने एग्जाम दिए हैं प्रैक्टिकल के. मैं बताता हूँ उसको. टर्म एंड का रहता है, ये इसका फर्स्ट सेमेस्टर का रहता है, सेकंड सेमेस्टर का रहता है, प्रीलिम का रहता है, हर सब्जेक्ट का रहता है.
यूनिवर्सिटी का रहता है, बताओ कितना दिया प्रैक्टिकल आगे बैठ के, पोस्टिंग के end पे पोस्ट एंड पे रहता है, बता कितना दिया। तो ये क्यों बोल रहा है इंटरव्यू नहीं दिया? अरे इतने इंटरव्यू देते हैं एमबीबीएस, कितने दिए तो बताओ ना सबको। हम कम से कम 100 के बाजू में इंटरव्यू देके इधर आए हैं। सो वी आर द बेस्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज अपोजिट पर्सन। हमको इतने मार्क्स क्यों आते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में? क्योंकि हम इंटरव्यू देते ही आए हैं भाई। हमारा 50% नहीं इंटरव्यू चलता है, हम उधर ही नहीं इंटरव्यू देते, पेशेंट के सामने भी इंटरव्यू देते हैं, पेशेंट के रिलेटिव के सामने भी इंटरव्यू चलता है। वो कोई बख्शता नहीं, हिट करता है हमको। हमारा तो ये तो ठीक है, नौकरी नहीं जाएगी, उधर तो मार खाना पड़ता है। सो इट्स कंटिन्यूअस इंटरव्यू, सो डोंट वरी, बी हैप्पी। वही समझ, ऐसा ऑफिशियल नहीं है पर अब अनऑफिशियली मैं बोल रहा हूँ, हमको इंटरव्यू का आदत हो गई है, सो डोंट वरी। तो सिर्फ हमको प्रिसाइज करना है। हमारा एक गलती है, हम सामने वाले को ना ज्यादा समझाने को जाते हैं, ये डॉक्टर की सबसे बड़ी गलती है। समझाना नहीं किसी को अभी ये टाइम, वो इशू हो जाता है, फिर उसे आंसर्स लेंदी हो जाते हैं, नॉनसेंस आंसर्स आते हैं। उनको लगता है ये ज्यादा समझाना इसको आता नहीं। यू हैव टू बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। उधर लिख के घर के रूम पे लिख दे, आई एम डॉक्टर, स्टिल आई विल नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू समवन, क्योंकि वो हमारे डीएनए में बन गया। टेम्परेचर आया तो बताएगा हाँ अभी ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारा टीचिंग के वैसा हुआ है ना। सो इट्स अ प्रोफेशनल ये ना, राइट। और अजून one student was from Chandigarh, Haryana. So question is related to 6 ratio. What is the Haryana 6 ratio at present? What Haryana did to improve it? This question was asked for me in every mock interview. तो हरियाणा का यस यस when I say sir, there is, sir see there is a certain amount of a change which is happening and is a palpable in the society. I know अभी तू मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, अभी तू तेरे हिसाब से वो उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा है। सी बिकॉज ये प्रोफेशनल बैड करना है मेरा भी कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज अ सिंपल वर्ड, पर उधर नहीं वैसा एक्सप्लेन करना है। अनदर सी इन द सोसाइटी I have palpable amount of social awareness has come, not because of a male, but it is because of the lack of female. ये आंसर अच्छा है, मेल के वजह से नहीं आया, लैक ऑफ फीमेल के वजह से सोशल बदल गया। क्यों? बिकॉज द मैरिजेस आर नॉट हैपनिंग। Government has changed. Now names are put on the property cards. Female gets easier loan than male. तो बदलाव तो होगा, पर थोड़ा भाई रुको ना। सोशल इम्प्रिंट ऑफ एनी ये तो एंथ्रो का थोड़ा पढ़ के जा। सोशल इम्प्रिंट नेवर चेंजेस इमीडिएटली। नाउ वी आर एट द यू टर्न। बोलना अभी whatever the damage has happened is damage happened. Now we are at the U-turn. Now things are altered. तो बोले you will explain दे दो, वो पोगट का जैसा फीमेल रेसलर का तू दे दे। सर अब जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछा था, आज ही पूछा था ये, जैसे कि बेटर इम्प्लीमेंटेशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड PCPND एक्ट, we have improved the sex ratio from 879 to 910. It is current in Haryana, but it is 916 in the 2023. So it is declining. What that schemes are short-term measures, or what are different deficiencies, and we should need to improve. Or you as a doctor or as an administrator, what will you do to improve it further to the national level? Now see, अभी तेरे को इंटेलेक्चुअल देना है या ऑफिशियल आंसर देना है? अभी देख ले। हाँ, see, whatever I am saying, birth rate is decreased to 2.1%. Right. Now single child is a communist policy. Birth rate has decreased. The single child is the communist policy.
right? After having a male child, very rarely parents opt for second child. So it will be having a longer duration curve, longer logistic curve to be improvement in the facts and figures, because it depends on at that place what the DNA configuration happens. ये आंसर कैसा है? पर Last part. last word. हाँ, means it will take a longer duration, longer logistic curve. Why? Because it is highly impossible to predict the DNA configuration happens during intercourse. If the family will have a male child, they will not opt for female. Only female will opt for male. So the first female will have higher chances to getting male. But for first male, because of the high बोलने का वो हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल हाई वो क्या बोलते हैं हमको सोशल का वो सब लिखा नहीं, वो क्यों हाई फर्टिलिटी रेटिंग डिक्रीजेस का सब डालना, बट दिस इज द की पॉइंट. सो इट विल हैपन, इट्स श्योर. द पॉलिसीज आर वर्किंग, बट इट हैज अ नेचुरल कर्व. तो बोलो ये मैंने किधर से ही पढ़ा नहीं है, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकल साइंस. तो इसीलिए बोल रहे हैं हम कि मेडिकल वालों को ले लो यूपीएससी में, थोड़ा तो मतलब One more question, that what is the सर pre-medical? तुम्हाला हे उत्तर बरोबर वाटलं? That is good point, Miss. इंटेलेक्चुअल पार्ट. Most of the times what happens that policy part and administrative part, we get indulged in that. So, but this point is quite middle path. So they will not have a counter question. So we can say this is an unforeseen circumstance of the declining, unforeseen result of the declining. नहीं सी बरं का की if you ask if you object about their professional efficacy ना, तो no civil servant will accept it. तो आपको लगता है क्या इतने सिविल सर्वेंट को ये ध्यान में नहीं आया? तो अकॉर्डिंग टू द माय पॉइंट, जब तुझे इस कॉर्नर पे खड़ा किया है तभी बोलना, खुद जाके इंडल्ज मत होना उनके साथ फाइटिंग करने में. पर मैं तुझे वे आउट दे रहा हूँ, साहब तू उधर बैठा हुआ है, सबसे बढ़िया ब्रेन वाला तू ही आदमी है. एट यूर एज उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं था, ये दिमाग में लेगा. इवन IIT पीपल डोंट हैव दैट दिमाग बिकॉज दे आर नॉट. तुझे एक मुझे बता, तूने जितना मेडिसिन पढ़ा है, सर्जरी पढ़ा है, गायनेक पढ़ा है 3 साल में, लास्ट ईयर के एग्जाम में है, उसका सब ऐसा पेपर का जितना पेजेस है वो एक साइड पे रख ले. अभी मुझे बता यूपीएससी में कितने पेजेस हैं? कम ही रह गया, कम ही है. सो यू आर ऑलरेडी एट पार. तो थोड़ी तो जेलसी रहेगी ना भाई. पर हमको क्या लगता है, वी हैव मेडिसिन दैट वी हैव कम फॉर दिस, वी आर मिसिंग आउट समथिंग. हमारे बंदे पीजी करेंगे, पीजी करके भी ज़्यादा क्या करेंगे? ऐसा रहता है ज़्यादा पढ़ने के बाद ज़्यादा पैसा मिलता है. दिस इज नॉट द इक्वेशन. यू गो फॉर एनी इक्वेशन, जितना कम पढ़ेगा उतना ज़्यादा पैसा मिलता है. दैट इज द इक्वेशन विच इज इन द सोसाइटी. तो वैसा ही नहीं है यार. इधर मिलेंगे 1000, उधर मिलेंगे 900 रुपये, उधर मिलेंगे 700 रुपये, इससे क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर 5-10 years एवरीथिंग इज सेम. अभी हमारे बच्चों को मैं सिखा रहा था ड्यूरिंग माई, ये तो नो वन शुड गो बाय एनी हिस्ट्री. आई ऑलवेज थिंक, मुझे क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू अवर क्या बोलते हैं रिचुअल बिलीव्स, वी वर्क इन अ त्रिपुरा रस, दत्तात्रेय इज द गॉड ऑफ द टीचर. तो उनका जो थिंकिंग क्या था, इट्स गिवन इन त्रिपुरा रस. He has explained to Parshuram everything, and you should first read all these things because this is very important. Like Gita, this is very important. Parshuram ka Tripura se what he has told, कि first thing he has told कि never predict, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है. Never predict. तो तू बोलेगा 5 साल का पंचवार्षिक योजना करना चाहिए. He said you plan everything but never predict. तुमको जो भी प्लानिंग करना है, तेरे को एयरपोर्ट बनाना है वो भी प्लान कर ले, पर नेवर प्रेडिक्ट.
क्योंकि मन में उसमें नहीं डालना। सेकंड थिंग, नेवर थिंक ऑफ हिस्ट्री। तो इसीलिए मैंने बोला ना, हिस्ट्री में जाना नहीं चाहिए। तेरे हिस्ट्री में कभी नहीं जाना। ये दूसरा पॉइंट होगा, लिव इन प्रेजेंट। ये तेरे इंटरव्यू के लिए भी अच्छा है, दत्तात्रेय महाराज ने जो बोला है। तो लिव इन प्रेजेंट एंड नेवर कंपेयर टू साइड। किसी से कंपेयर नहीं करना, खुद के मजे में रहो। दिस विल अचीव व्हाट वी कॉल एज सेल्फ रियलाइजेशन। अभी वो कैसा अचीव होता है वो जब तुम पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा, बट दिस इज द बेसिक नीड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। किसी का भी सेल्फ, अभी तुमको तो महाकुंभ में पूछेगी, तुमको बोलेगा सैनिटेशन का कैसा मैनेजमेंट करता है, ये पूछेंगे। हेल्थ हैजार्ड हुआ तो क्या करेंगे, अभी जीपीएस हुआ है तो वाटर कंटामिनेशन हुआ है, तो वाटर कंटामिनेशन व्हाट आर द वेज। इसके पहले दिल्ली में हुआ था, कॉलरा हुआ था। इसके पहले वाटर कंटामिनेशन किधर हुआ था वो तुमको देखना पड़ेगा। वाटर कंटामिनेशन इज अ कॉमन फिनोमेना, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वेल वर्स विद दिस ऑल थिंग्स। पहले जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर नहीं है, सो नथिंग टू बी वरीड, नथिंग टू बी पैनिक। एवरीवन नोज अबाउट द सेफ्टी ऑफ अ कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। पहले जैसे लोगों को मालूम नहीं था किधर के पानी पी रहे थे, अभी पीपल आर बिट एजुकेटेड। पिछले जैसा कुछ सिनारो होने वाला नहीं है सर, डोंट वरी, वी शुड बी वेरी एश्योर्ड। हमारा प्रॉब्लम ही अलग है सर, हमारा प्लास्टिक के वजह से कैंसर होने का प्रॉब्लम है सर। प्लास्टिक कंटेनर में पानी पीते, ये हमको सोचना पड़ेगा। हमको रेडिएशन के बारे में सोचना पड़ेगा। वी हैव मूव्ड आउट, नाउ वी आर गोइंग टू बिकम अ सुपर पावर। इसके ऊपर ले ले उसको। बोलने का महाकुंभ में भी सब बिस्लरी के पानी पीते तो काय का कंटामिनेशन होगा, राइट और रॉन्ग। सब मॉस्किटो चाप लेके गुड नाइट लेके जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, बिकॉज पेशेंट्स एजुकेटेड। दिस सिनेरियो हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ इट। सो वी शुड बी मोर फोकस्ड पॉलिसीज ऑन पेशेंट एजुकेशन। हमारे पास एजुकेशन का यही नहीं, पोर्टल ही नहीं है। MOH ने बनाया है, पर उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो PDF फॉर्मेट में है, एंड इज फॉर द डॉक्टर्स एंड द वर्किंग पीपल, नॉट फॉर द एवरेज पेशेंट्स। Like sir, I asked with the certain type of question, like there are certain funds we will give you, and you will act as a health secretary. So what are the different priorities you will have to invest in the health sector? So one thing is like I will create infrastructure, that I told, like one priority should be infrastructure creation. Second is the man-force available to them, like in the CHS, specialist deficiency. Third main important thing is awareness creation. Yes. Like if we have infra, we have man-force, and the patient is not coming to doctor, then what is? अभी मैं तुझे बताता आंसर कैसा देना। आई एम नॉट अथॉरिटी, बट एक मेरा नजरिया ले ले। हाँ, इट माइट बी लाइक कि मैं, तुझे अच्छा लगा तो ले ले, बाकी छोड़ देना यार भाई। इधर तो अभी तू बनना है, तो इतना पढ़ाई करके इधर तक पहुंचा है, MBBS तक सब पापड़ मिल के इधर तक आया है, तो यू हैव सम पोटेंशियल यार। इधर तो आया तो कुछ तो फिर मेरा सोच। अभी मुझे तूने पूछा वही क्वेश्चन, becoming as a secretariat in a health secretary, what you will do? And then, sir, I will go and I will see what are the previous policies. There will be some policies which will be in a soup or non-performing or bad performing, and some policies will be a good performing. So for the good performing I will not change anything. देख लिया मेरा कैसा आंसर जा रहा है। The bad performing I will call for meeting. I will involve all stakeholders. I will inquire. Right? I will make a pro forma and I will submit to my senior. क्योंकि तुम क्या है, SDM तो बना दिया है, हेल्थ सेक्रेटरी बने। तो अभी तू जब हेल्थ सेक्रेटरी बनता तो आई विल सी द हेल्थ ऑर्डर एंड देन आई विल टेक, खुद का कुछ नहीं बोलना, देन आई विल टेक एक्सपर्ट ओपिनियन, आई विल पुट अ पैनल, आई विल सी व्हाट अदर नेशंस आर डूइंग, आई विल थिंक ग्लोबली, आई विल टेक हेल्प, आई विल हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई विल हैव कॉन्फ्रेंसेस, I will have intellectuals and sort out the problem cohesively with a minimal economy,
with a maximum output, with a maximum technology, with a minimum resources. Like sir, issue is like they will directly ask either this or either this. We will ask. Investment, insurance, they give you areas. What are the priorities? अभी क्या पूछेगी? अभी ये तो मैंने आंसर किया. ये तेरे को आंसर कैसा लगा? Yes sir. हाँ, अभी तेरे को और मुझे ग्रिल कर दे. चल, क्या कर रहा है ग्रिल? Like sir, if हाँ, अभी तो पूछ रही, क्वेश्चन ही पूछ लिया. you are a secretary and you are given 5,000 crore rupees. Yes. There are two areas. One is the insurance sector. Second is the primary healthcare sector. You have to choose one. Which will you prefer? You have prioritized. This is the question asked in the transcript. Okay, one second. One thing is insurance sector and one is Primary healthcare. one is. Sir, for me, both are equally important. Without, I will do everything, but I will take accountability. Finished. उतना ही. Every sector has its own positive values as well as negative values. But accountability is the most important finding which is lacking, and hence the reform which is lacking.